السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ آئین کے آرٹیکل 62 کی تاحیات نااہلی سے متعلق اپنا فیصلہ ختم کر دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ 6-1 کے تناسب سے فیصلہ۔ جسٹس یحییٰ اعظم انوار الحق کاکڑ کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ حکومت اسمگلنگ کے مکمل صنعتوں کے قیام کی جامع منصوبہ بندی کی تحت تجارت اور سرحدی اضلاع میں اسمگلنگ کے لیے شاہراہوں کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر اور بحالی کی فوری ضرورت ہے۔ منصوبہ بندی اور وسائل کے شروع کیا جائے۔ وزیر اعظم اور کے الیکٹرک مسائل کا حل باہمی مشاورت سے نکالیں۔ کے الیکٹرک کی 390 ارب ناصر منیر کا 2 روزہ دورہ بحرین۔ بادشاہ حمد بن عیسی الخلیفہ بحرین کے فیلڈ مارشل اور عسکری شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ میں اعلیٰ ترین عسکری اعزاز آرڈر آف بحرین سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ طرفہ مضبوط تعلقات دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ وقت کی ضرورت۔ بھٹو زرداری سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں فروغ پر تبادلہ خیال۔ 4 سال میں ملکی سیاست تباہ کی گئی۔ ہمیں تاریخ سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتے ہوئے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ انتخابات کے التوا کے خلاف ہیں۔ چیف جسٹس سمیت تمام ججز پر مکمل اعتماد ہے۔ یقین ہے انصاف ملے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کے فیصلے پر صدارتی ریفرنس کی سماعت فروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے میاں رضا ربانی کے اعتراض پر خود کو عدالتی معاونت سے الگ کر لیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ عام انتخابات کی تیاریاں، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف الیکشن ٹریبیونلز میں اپیلوں پر سماعت۔ نظر ثانی شدہ فہرستیں 11 جنوری کو جاری ہوں گی۔ SMS سروس 8300 پر ادھوری معلومات سے متعلق خبر درست نہیں۔ انتخابات سے متعلق خبروں پر الیکشن کمیشن کا موقف ضرور لے۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ تحریک انصاف ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم پر دھڑے بندی کا شکار۔
इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के कारकुन सरापा एहतजाज। टिकट मनपसंद उम्मीदवारों को दिए गए, नाराज कारकुनों का पीटीआई क़यादत से शिकवा। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद जाहिर मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। ISPR। गजा में इंसानियत का कत्लेआम जारी, सेहूनी फोर्सेस का दिरुल बलाह में अलक्सा शोहदा अस्पताल पर ड्रोन हमला, 8 अफराद शहीद, 600 से ज्यादा मरीज और अमले के अरकान लापता। 24 घंटे के दौरान मजीद 249 अफराद शहीद, तादाद 23,084 हो गई। बैतुल्लहम, नाबलुस, रमल्ला समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। सानह 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ गई। एक जमात के शरपसंदों का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी पर धावा, कीमती तिब्बी आलात, अस्पताल के साजो सामान और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आजादी कश्मीर को दबाने के उच्छे भारतीय हथकंडे, काबिज फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी किए पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, घरों पर छापे, मकीनों को हिरासा किया। तहरीक कश्मीर के ज़रिए एहतमाम यूरोपीय यूनियन और बरतानिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तकरीबात। आलमी बरादरी से तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए फौरी किरदार अदा करने का मुतालबा। बांग्लादेश इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग मुसलसल चौथी बार कामयाब, 299 में से 222 नशिस्तें जीत ली। वजीर आजम अनवारुल हक काकर की शेख हसीना वाजिद को मुबारकबाद, तवक्को है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद फरोग पाएंगे वजीर आजम। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तानी खातून शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तलत ने चांदी का तमगा जीतकर ओलंपिक्स का टिकट कटाया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए क्रिकेट टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। मोहम्मद रिजवान कौमी T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। 5 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से ऑकलैंड में होगा। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अरकान की ताहयात नाअहली से मुतालिक अपना फैसला खत्म कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 की तनासुब से मुख्तसर फैसला सुनाते हुए करार दिया कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह, इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट डालने से मुतालिक आइन के आर्टिकल 17 से मुताबिकत नहीं रखती। 2018 का ताहयात नाअहली से मुतालिक समीउल्लाह बलोच केस का फैसला खत्म किया जाता है। अदालत ने कहा कि 2023 में इलेक्शन एक्ट में डाली गई सेक्शन 232 शेक 2 में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल बयान की गई है। ताहम ये शेक पहले से नाफिजुल अमल है, इसलिए इसके दुरुस्त होने या इसके दायरे इख्तियार का इस मुकदमे में जायजा लेने की जरूरत नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को कानूनी तौर पर दुरुस्त करार देते हुए कहा है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात या हमेशा के लिए नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत
महज कानूनी अदालत की तरफ से दिए गए डिक्लेरेशन की मुद्दत तक होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने मुकदमे की समाअत मुकम्मल करते हुए इस माह की 5 तारीख को फैसला महफूज किया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि स्मगलिंग के घिनौने कारोबार से सिर्फ चंद बासर अफराद को फायदा पहुंचता है और पूरी कौम नुकसान उठाती है। हुकूमत इसके मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ज़ेर सदारत अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे के तहत तिजारत और सरहदी अजला में स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम के लिए तमाम इदारे बिलखुसूस फ्रंटियर कोर, कस्टम्स और ज़िले इंतजामिया अपने इक़दामात में तेज़ी लेकर आएँ। सरहदी इलाकों के लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करने, उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाहुनर बनाने के लिए एक जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सरहदी अजला में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स और सनतों के क़याम से लोगों को मुतबादिल बाइज़्ज़त रोजगार की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उनका कहना था कि स्मगलिंग के जरिए मकामी लोगों को रोजगार के मौके देने के भोंडे जवाब की आड़ में चंद अफराद को मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि NLC चमन बॉर्डर पर अपने स्कैनिंग और चेकिंग के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करे और पाकिस्तान कस्टम्स सरहदी इलाकों में अपने इस्तेदाद कार में इजाफा करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरहदी अजला बिलखुसूस हसास इलाकों में अच्छी शोहरत के अफसरान तैनात किए जाएं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सरहदी इलाकों में कानूनी तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए और मुकम्मल दस्तावेजी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। इजलास को अफगान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से रिपोर्ट पर पेशरफ से आगाह किया गया। इजलास को पाकिस्तान कस्टम्स, FC, ज़िले इंतजामिया और NLC की सरहदी इलाकों में कारकर्दगी से भी आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि तमाम एजेंसियां मिलकर सरहदी इलाकों में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही हैं, जिसकी बदौलत लाखों टन गैर कानूनी अशिया की गैर कानूनी दरामद रोककर मुल्की खजाने को भारी नुकसान से बचाया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। सड़कों का जाल बिछाए बगैर तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले से जायजा इजलास की सदारत के दौरान गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्क में सड़कों की तामीर के हवाले से नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के ऐसे हिस्सों में सड़कों के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियाद पर बनाने की जरूरत है जहाँ बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्किल है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर पर खुसूसी काम की जरूरत है। उन्होंने हिदायत की कि कराची चमन शाहराह की तामीर नौ का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची चमन शाहराह की तामीर से न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम को फायदा होगा बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों को भी एक बेहतर मुतबादिल राहदारी मुयसर आएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नई शाहराहों के मनसूबे तैयार करते हुए तफसीली मनसूबाबंदी और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के बाहमी ताउन से कराची के लिए बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ारत तवानाई के इलेक्ट्रिक के मसाइल का बाहमी मुशावरत से मुस्तकिल हल निकाले। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनिस अब्दुल्ला अलवी की क़यादत में के इलेक्ट्रिक के वफ़द से मुलाकात में किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म को के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने के इलेक्ट्रिक के लिए 390 अरब रुपए के सरमायाकारी मनसूबे और काबिल तजदीद तवानाई के 640 मेगावाट के मनसूबों के लिए निर्ख की मंजूरी और 1000 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली समेत मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंचे हैं। ISPR के मुताबिक जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपने दौरे में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से अलहदा मुलाकातें की। इन मुलाकातों में दोनों मुल्कों की सलामती और अस्करी शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल सईद आसिम मुनीर ने बहरीन के नेशनल गार्ड की सालाना तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ को बहरीन के मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने इंसदाद दहशतगर्दी और अस्करी तरबियत के हवाले से बहरीन की नेशनल गार्ड की पेशा वाराना तरबियत में मुआविनत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। एक पुरवकार तकरीब में बहरीन के बादशाह ने आर्मी चीफ को उनकी खिदमात के एतराफ में आला तरीन अस्करी एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फरोग के हवाले से की जाने वाली खिदमात पर बहरीन का आला तरीन
अस्करी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा और बहरीन की मुसल्लह अफवाज के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा से भी अलहदा मुलाकातें की। बहरीन की आला क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने लाहौर में मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ वक्त की ज़रूरत है। दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान और बरतानिया के मफाद में हैं। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। जेन मैरियट का कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग़ के हवाले से बातचीत की गई है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की सियासत को 4 साल में तबाह किया गया, हमें तारीख से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। ये मौका है कि हम तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा कि हमने इंतकाम की सियासत को दफन कर दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि हम भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के फैसले पर सदारती रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच के रूबरू एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने मियां रज़ा रब्बानी के एतराज़ पर खुद को रेफरेंस में अदालती मुआवनत से अलग कर लिया। मियां रज़ा रब्बानी का एतराज़ था कि ख्वाजा हारिस के वालिद भुट्टो केस में वादा मुआफ़ गवाह मसूद महमूद के वकील रह चुके हैं। समाअत के दौरान बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदारती रेफरेंस के जरिए अदालत किसी फैसले का दोबारा जायजा कैसे ले सकती है। भुट्टो केस में ज्यादा जजेस थे, ताहम इंटरव्यू सिर्फ एक जज का हुआ। हो सकता है कि बेंच में शामिल दूसरे जजेस दबाव में ना हो। बेंच के रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू पर पूरी अदालत के बारे में यह तासुर नहीं दिया जा सकता कि वो आजाद नहीं थी। बेंच में दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने नोट लिखे और फैसले से इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि इस केस में जज की राय नजरअंदाज नहीं की जा सकती। भुट्टो केस में फैसले के लिए बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम थी। एक जज की अक्सरियत के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई है। समाअत के आगाज पर अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भुट्टो केस को आम मुकदमे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अपने फैसले के दोबारा जायजे से सुप्रीम कोर्ट की साख में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा। कुछ बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत जारी है। नजरसानी शुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में हल्कावार पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के का वोटर और उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त पर एतराज़ या तजवीज़ 11 जनवरी तक जमा करा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक जिला रिटर्निंग अफसरान 12 से 17 जनवरी के दौरान इन एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसले देंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज़ कबल आवेज़ा कर दी जाएगी। आम इंतखाबात में ख्वाजा सिरा उम्मीदवारों की अहलियत के मामले पर इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर दिया है। इस्लामाबाद से ख्वाजा सरा नायाब के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आज मजीद 6 अपीलों पर भी समाअत की। ट्रिब्यूनल ने 3 अपीलें मंजूर कर लीं जबकि 3 पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में अब तक 71 अपीलों की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। उधर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 130 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया। जस्टिस तारिक नदीम ने NA 129 लाहौर से PTI के उम्मीदवार मियां अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए मियां अजहर को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हुई।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी के मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत करते हुए उनके कागजात मंजूर कर लिए। पेशावर हाई कोर्ट में कायम 3 एपलेट ट्रिब्यूनल्स में 53 कागजात नामजदगी पर अपीलों की समाअत हुई, जिसमें 31 अपीलें मंजूर और 10 अपीलें खारिज कर दी गईं। ट्रिब्यूनल्स ने 12 अपीलों पर समाअत मुलतवी कर दी। अबू तुराब, आफ्ताब आलम, खुरम ज़िशान, सानिया हैदर समेत 31 उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर लीं। खवातीन हमारी मुल्की आबादी का निस्फ हैं। यही वजह है कि इंतखाबी अमल में खवातीन की राय को खुसूसी अहमियत हासिल है। आइंदा आम इंतखाबात में खवातीन वोटर्स के अहम किरदार के हवाले से देखते हैं सईद वजीर की ये रिपोर्ट। नई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई आबादी 24 करोड़ 90 लाख 14 हजार नफूस पर मुश्तमिल है। मुल्क में वोट डालने के अहल मर्द व खवातीन की तादाद 12 करोड़ 85 लाख 85 हजार 760 है। इनमें खवातीन वोटर्स की तादाद 5 करोड़ 93 लाख 22 हजार है। आम इंतखाबात में खवातीन वोटर्स किसी भी हल्के के नताइज को बदलने की सलाहियत रखती हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में खवातीन की जानिब से वोट डालने की शरह कम रहती है। इंतखाबी कवानीन के मुताबिक जिस हल्के में खवातीन के वोट डालने की शरह 10% से कम होती है, वह इंतखाबात दोबारा कराने होते हैं, जिससे वक्त और मुल्क की वसाइल जाया होते हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है और जो साबिक फाटा के इलाके या मध्य डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इब्तिदाई सी खवातीन की जो वोट की जो इंदराज था वो बहुत कम रही है। आइंदा आम इंतखाबात में भी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा खसूसन कबायली अजला में खवातीन वोटर्स को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने के लिए राग़िब करने की जरूरत है। इस ज़िमन में मकामी अमायदीन, कबायली मशरान और मजहबी रहनुमा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फिर कबायली अजला की जानिब अगर हम देखें तो यहाँ पे खवातीन जो है वोटर, उनका टर्न आउट बहुत कम है, न होने के बराबर है। किसी भी मुल्क की निस्फ आबादी को इंतखाबी अमल में शामिल किए बगैर मुल्क में जमहूरी निज़ाम अधूरा शुमार होगा। इसलिए इस बार खवातीन को इनका बुनियादी हक के राही दई इस्तेमाल करने का मौका देने के लिए फौरी इक़दाम जरूरी हैं। सईद वजीर, PTV न्यूज़। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कि SMS सर्विस 8300 पर अधूरी मालूमात से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि इंतखाबात से मुतालिक खबरों पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जरूर ले। MKM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सुबह सिंध में सीट एडजस्टमेंट के लिए सिफारिशात तय कर ली गई हैं, जिसे मंजूरी के लिए पार्टी की आला क़यादत को भिजवा दिया गया है। इस बात का ऐलान दोनों पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए MKM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ गुफ्तगू मस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है, जबकि सिंध के अवाम का भी बुनियादी हक है कि उन्हें तरक्की के मौके मैसर आएँ, जिसके लिए मुश्तरका तौर पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन आया है, इस पर पूरी PMLN की क़यादत को मुबारकबाद दी है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा डिसीजन है, जिसे MKM पाकिस्तान भी वेलकम करती है। साथ साथ MKM पाकिस्तान अपने इस बात का और इस वादे का भी अहादा करती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और MKM पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर सिंध का वजीर आला नामजद करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद ने कहा कि सूबे सिंध की हालत जार देख कर अफसोस होता है, जबकि बुनियादी मसाइल पानी, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम में ये सूबा बावजूद वसाइल के पीछे रह गया है। ये कसीरुल जमाती इत्तेहाद जो है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है और इसके अंदर जो विज़न है वो एक ही है कि सिंध के अंदर पिछले 15 साल से ख़ास तौर में कम से कम 22,000 अरब रुपया डेवलपमेंट में आया है, और अगर आप सिंध के हालात देखें तो आपको 2200 अरब लगा नज़र नहीं आता।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई रहनुमा निहाल हाशमी ने कहा कि आइंदा आने वाला वक्त सूबे सिंध के लिए भी तरक्की के नए बाब खुलेगा। इससे पहले दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द में अमीनुल हक, जावेद हनीफ, हसन साबिर शामिल हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द में निहाल हाशमी, राना मशहूद, नासिरुद्दीन और महमूद अली शामिल थे। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। तहरीक इंसाफ टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर धड़ेबंदी का शिकार हो गई। तहरीक इंसाफ, आईएसएफ और इंसाफ यूथ विंग के सरापा एहतजाज कारकुनों ने इंसाफ के लिए इस्लामाबाद का रुख किया। तफसील इस रिपोर्ट में। वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो, वर्कर को इज्जत दो। तहरीक इंसाफ में आम इंतखाबात के लिए टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के कारकुन इस्लामाबाद पहुंच गए और तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के खिलाफ अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नाराज कारकुनों का कहना है कि तहरीक इंसाफ में नाइंसाफी हो रही है। सीनियर और काबिल ओहदेदारों को नजरअंदाज करके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं। वर्कर को ब्लैकमेल करके या वर्कर को दीवार के साथ लगाने की कोशिश करेंगे तो हम PK42 सर्कल बुकोट से हरगिज़ इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे सिंपल डिमांड है, तो हम अपने मशरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यूथ को 25% कोटा मिल जाए। हम ये कहते हैं कि मेरिट पर टिकट की बंदोबस्त की जाए। पीटीआई के एहतजाज करने वाले कारकुनों का कहना है कि तहरीक इंसाफ शदीद धड़ेबंदी का शिकार हो चुकी है। टिकट के असल हकदारों का हक मारा गया है। उनका कहना है कि जिन लोगों को टिकट जारी किए गए उन्होंने भारी रिश्वत देकर टिकट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी नायब सदर चौधरी बर्जीस ताहिर ने कहा कि 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन होगा। अवाम की ताकत से वफाक समेत तमाम सूबों में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। वो ननकाना साहिब की तहसील सांगला हिल में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। अपने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से रुका था। उधर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें उनका कहना है कि इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। हम 25 निकाती मंशूर के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबा सिंध से 90% उम्मीदवार नामजद कर दिए गए हैं। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि आम इंतखाबात के लिए हर हल्के से उम्मीदवार सामने लाएंगे। बाजोड़ की तहसील मामूद में पुलिस की गाड़ी के करीब बम धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाका रास्ते में पहले से नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल के MS वजीर साफ़ी के मुताबिक जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बाजावड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद एहलकारों के दराजात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का भी इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि हमले में जख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम सिक्योरिटी एहलकारों और पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करती है। दहशतगर्द कभी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह ने बाजावड़ में पुलिस वैन के करीब धमाके की मजम्मत की। धमाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह के बुज़दिलाना वाक़यात से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे। उधर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने जिला बाजावड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा कि शरपसंद अनासिर पोलियो मुहिम को रोक नहीं सकते। नाज़रीन, मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू हो गई है। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कौमी इंसदारी पोलियो मुहिम के आगाज पर खुसूसी पैगाम में कहा कि 4 करोड़ 40 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। बाज़-औक़ात बड़ों की छोटी सी गलती बच्चों के लिए उम्र भर का रोग बन जाता है। पोलियो का मर्ज भी ऐसा ही है। हम वैक्सीन के 3 कतरे पिलाकर अपनी आइंदा नस्ल को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं।
इस सिलसिले में रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है, जिसके तहत महकमा सेहत की टीमें मुल्क के तमाम 159 इजला में 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिला रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने अपने पैगाम में कहा है कि वालिदैन से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाएं और पोलियो के कतरे पिलाएं। पंजाब में 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 2 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो की मुहिम 7 रोज, जबकि सूबे के दूसरे इजला में 5 रोज जारी रहेगी। 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पेशावर और खैबर में 7 रोजा जबकि दीगर इजला में 5 रोजा मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान 74 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर 31,000 से जायद तरबियत याफ्ता टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के लिए 50,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सिंध में 1 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5 रोजा मुहिम के दौरान 2,50,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। अगर पोलियो टीम किसी घर का दौरा नहीं करती तो वालिदैन को हेल्पलाइन 1166 पर राब्ता करने की हिदायत की गई है। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में भी 7 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। सेक्रेटरी हेल्थ बलूचिस्तान ने मुहिम का इफ्तिताह किया है। कोयटा से अफनान शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। 7 रोजा पोलियो मुहिम में 25,96,000 से जायद बच्चों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया है। एंटी पोलियो कैंपेन में 11,399 टीमें हिस्सा लेंगी। 9,116 टीमें डोर टू डोर पहुंचेंगी। 958 टीमों को फिक्स साइट जबकि 630 ट्रांजिट पॉइंट्स पर तैनात होंगी। 8 जनवरी से पूरे बलूचिस्तान के 36 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है और इसमें कुछ 20 लाख के लगभग बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा और 812 यूनियन काउंसिल्स में यानी 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में पोलियो मुहिम आज जोरों शोर से हमने जारी की। जनवरी 2021 से एंटी पोलियो के लिए मुसलसल कोशिशों की बदौलत बलूचिस्तान भर से अब तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो टीमें सख्त सर्दी, बारिश और बर्फबारी में भी फराइज के अंजाम दही में मसरूफ हैं। वालिदैन से भी अपील है कि वैक्सीन की अहमियत को नजरअंदाज ना करें क्योंकि पोलियो लाइलाज है। पोलियो वायरस जिंदगी भर के लिए बच्चों को मफलूज कर सकता है। पोलियो वायरस लाइलाज है। वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता पोलियो वैक्सीन है। अफनान शाह, पीटीवी न्यूज़, क्वेटा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2024 के लिए मुआहिदा तय पा गया है। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब जद्दा में हुई, जिसमें सऊदी अरब के वजीर हज तौफीक अल अरबिया और पाकिस्तान के निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने दस्तखत किए। दूसरी जानिब सऊदी अरब के हज जद्दा में आलमी हज नुमाइश शुरू हो गई है। नुमाइश 4 रोज तक जारी रहेगी। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के माबैन माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें समुद्री तहफ़्फ़ुज़ और बहरी शोबों में बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी ने वफ़द की क़यादत की। वाइस एडमिरल ने रॉयल सऊदी नेवी फोर्सेस के तरबियती शोबे को मज़ीद तक़वीत देने के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस वाइस एडमिरल फ़हद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। काहिरा में पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश का आगाज कल से हो रहा है। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज और मिस्र के वज़ीर तिजारत अहमद समीर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से 100 से ज़्यादा कंपनी इस नुमाइश में हिस्सा लेंगी। 10 और 11 जनवरी को 2 रोज़ा सिंगल कंट्री नुमाइश होगी। पाकिस्तान से 200 से ज़्यादा ताजर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने काबुल के इलाके दश्तबर्ची में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेगुनाह जानों के ज़िया पर अफगान अबूरी हुकूमत और अफगानिस्तान के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को हैं। तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत का इयादा करता है, जबकि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम के साथ यकजहती के लिए खड़ा है।
वज़ीर लबनान की मज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर इसराइल के मुबैना ड्रोन हमले में हलाक हो गए हैं, जिससे गज़ा की जंग दूसरे इलाकों में फैलने का खदशा पैदा हो गया है। ये हमला जनूबी लबनान में किया गया। हिज़्बुल्लाह ने अपने जंगजू रहनुमा वसाम हसन तवील की हलाकत की तस्दीक की है। वसाम हसन हिज़्बुल्लाह एलीट रिजवान फोर्स के नायब सरबराह थे। गज़ा पर इसराइली जहरियत का सिलसिला तवातुर के साथ जारी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 249 फ़लस्तीनी शहीद और 510 ज़ख्मी हो गए हैं। वस्ती गजा के इलाके दरुलबलाह में अलक्सा शोहदा अस्पताल पर ड्रोन हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। आलमी दायरा सेहत ने हमले के बाद 600 से ज़्यादा मरीजों और अमले के अरकान के लापता होने का खदशा जाहिर किया है। आलमी दायरा सेहत के सरबराह टेड्रोस एडनम गैब्रियस ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि 600 से ज़्यादा मरीजों और अमले के अरकान को अस्पताल से निकल जाने पर मजबूर किया गया, जिसके बाद वो लापता है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में जारी सेहूनी बर्बरियत में शोहदा की मजमूई तादाद 23,084 हो गई है, जबकि 59,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन 7,000 अफराद लापता भी हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली बर्बरियत जारी है। काबिज फौज ने बैतुल्लहम, नाबलुस, रमल्ला और अल खलील समेत मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन एक हफ्ते पर मुहित दौरे मशरिक़ वस्ता के दौरान आज सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। एंटनी ब्लिंकन ने इससे कबल तुर्की, यूनान, उर्दन और कतर का दौरा किया था। उनके दौरे मशरिक़ वस्ता का मकसद इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जारी जंग के बाद पैदा होने वाली कशीदगी को कम करना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल का भी दौरा करेंगे। बांग्लादेश में इतवार को होने वाले आम इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने कामयाबी हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के बाइकआउट के बायस टर्नआउट महज 40% रहा। नताइज के मुताबिक अवामी लीग ने 299 में से 222 नशिस्तें जीत ली। 62 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि हसीना वाजिद की इत्तेहादी जमात जातिया पार्टी भी 11 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात BNP ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये इंतखाबात महज धोखा और फ़रेब थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने शेख हसीना को एक मरतबा फिर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने शेख हसीना के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि उनके नए दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। नाज़रीन, सानह 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ मंजर आम पर आ गई है। एक मखसूस सियासी जमात के तकरीबकारों की शरपसंदी से अस्पताल तक महफूज न रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शर्मनाक अंदाज में धावा बोलते नजर आ रहे हैं। शरपसंद अनासर ने अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़ फोड़ करने के बाद आग लगा दी। CCTV फुटेज में शरपसंद अनासिर कीमती तिब्बी आलात और अस्पताल के दीगर साजो सामान को नुकसान पहुंचाते और लूट मार करते वाजे नजर आ रहे हैं। वीडियो में शरपसंदों का ये जत्था मोटरसाइकिलों और अस्पताल में खड़ी गाड़ियों को आग लगाता भी देखा जा सकता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मखसूस सियासी जमात के बुलवाइयों ने निशान हैदर हासिल करने वाले शोहदा की तस्वीर से मुज़य्यन दीवारों और कब्रों को भी नहीं बख्शा। बागियाना नारे लगाते हुए इस मखसूस सियासी जमात के तकरीबकारों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की इमारत को आग लगाई। अस्पताल और फलाही इदारे पर बराह रास्त हमला खुसूसी सियासी जमात की शरपसंदी की पस्तरीन मिसाल है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इन वाज़े वीडियो शवाहिद के बाद मुसल्लह अफराद को मुल्की कवानीन के मुताबिक मिसाली सजाएं देना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प हुई है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मर्दान के रिहायशी 41 साल हवालदार मोहम्मद जाहिर शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दहशत गर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। इलाके में मौजूद किसी और दहशत गर्द की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मादरे वतन को दहशत गर्दी की लानत से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने आज भी मुख्तलिफ इलाके में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखी। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने राजौरी और पुंछ अजला में कार्रवाइयों के दौरान घरों में लोगों को हिरासत किया। फौजियों ने लोगों से कहा कि वह आज़ादी पसंद कारकुनों की मुखबरी करें। उन्होंने मकामी लोगों को खबरदार किया कि अगर उन्होंने फौजियों के साथ ताउन करने से इनकार किया तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। फौजियों ने शुपियां, कुलगाम और पुलवामा अजला में भी कार्रवाइयाँ जारी रखी। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटेरिएट ने एक बयान में एक बार फिर आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इस्तिस्वाब राय के जरिए तनाज़ कश्मीर को हल करे। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर के हतमी हल की हिमायत का इरादा किया।
तहरीक कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यूरोपीय यूनियन और बरतानिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने आलमी बरादरी की तवज्जो मसला कश्मीर के फौरी हल की जानिब मबजूल कराई। मुकर्रीन ने खबरदार किया कि दरीना तनाज़ कश्मीर के हल में मज़ीद ताख़ीर जनूबी एशिया के खित्ते में जौहरी तबाही का बाइस बन सकती है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के ज़ेर इंतज़ाम यौम करारदाद कश्मीर के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कश्मीर के बारे में अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अक़वाम मुत्तहिदा को 74 साल पहले किए गए अपने वादों का एहतराम करना होगा। शुरका ने कहा कि कश्मीरी आवाम को आज़ादाना और मुनसिफाना राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तकबिल का तयन करने का मौका दिया जाए। मालदीव और भारत के ताल्लुकात सदमोहरी का शिकार हो गए। मालदीव के वसाइल पर काबिज होने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गया। मालदीव के नौमुंतखब सदर मोहम्मद मोइज़ो मोदी सरकार की मालदीव में मुदाखलत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने भारत से ताल्लुकात को पसे पुश डालते हुए मालदीव की खारजा पॉलिसी को मुतनव्वे और नए सिरे से तरतीब देने का ऐलान किया। उन्होंने तमाम हिंदुस्तानी फौजियों को अपने मुल्क से भारत वापस जाने का हुक्म दिया। मोहम्मद मोइज़ो ने भारतीय फौज की मौजूदगी को मुल्क की इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया और भारत को मालदीव के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुताल्लिक खबरदार किया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 902 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक पाकिस्तान से वापस आने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 4,61,783 से ज्यादा हो गई है। अफगान बाशिंदों की बावकार अंदाज में वापसी के लिए हर जिले में आरजी कैंप कायम किए हैं, जहाँ रिहायशी सहूलतें फराहम की गई हैं। बलूचिस्तान कस्टम ने 6 माही कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। तर्जुमान पाकिस्तान कस्टम बलूचिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 57 अरब ड्यूटी टैक्सेस कौमी खजाने में जमा किए गए। बलूचिस्तान कस्टम फ्लड इन्फोर्समेंट ने गैर मुल्की सामान बरामद किया, जिसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, छालिया, स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत, मोबाइल फोन, सिगरेट्स, अशिया खुर्दनोश, टायर्स, कपड़ा, ऑटो पार्ट्स, चीनी, यूरिया खाद, करेंसी और अद्वियात शामिल हैं। शिमाली वजीरिस्तान में अमन के बाद तरक्की और खुशहाली पर काम किया गया और अब यहाँ सियाहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शिमाली वजीरिस्तान सियाहती एतबार से हैरत अंगेज और खूबसूरत वादियों पर मुश्तमिल है। शिमाली वजीरिस्तान के कई इलाके अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे मकामी लोगों को रोजगार के बेशुमार मौक़े फराहम होंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की बालाई हद 43 साल रखने पर इत्तेफाक किया गया। बलूचिस्तान काबीना ने इस साल के लिए गंदम की इमदादी कीमत 4300 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दी। इसके अलावा महकमा सेहत में फ़राइज़ के दौरान जाँ बहक तिब्बी स्टाफ को शहीद करार देने का फैसला किया गया। काबीना ने मिल्स को गंदम की फराहमी की ज़ेर इल्तवा पॉलिसी और गंदम की पिसाई की कीमत के तयन की भी मंजूरी दी। एबटाबाद के अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर में इजलास हुआ। इजलास की सदारत खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह ने इस्लामाबाद से बज़रिया वीडियो लिंक की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहराह कराकोरम पर मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग समेत दीगर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इजलास में हज़ारा मोटरवे से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए NHA हुक्काम का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से कोई भी फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। लाहौर में CBD मंसूबे के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत से कबल मुकम्मल करें। इंतखाबात से पहले CBD मंसूबे पर ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जराइम पर काबू पाने के लिए कवानीन को मजीद सख्त करना होगा। उन्होंने कहा कि खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सिंध के निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर ने सखर और लाड़काना की हदूद में अगवा की वारदातों का नोटिस लेते हुए सिंध के IG पुलिस को अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर आला ने कहा कि जिस जिले से अगवा की वारदातें हो रही हैं, इन अफसरान के खिलाफ एक्शन लें, अगवा की वारदातों को रोका जाए और मुग़वियों को फौरी तौर पर बादशाह करवाया जाए। मकबूल बाकिर ने कहा कि पुलिस मुग़वियों के ख़ानदान के साथ ताउन करे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत है। पेशावर में अवामी नुमाइंदा वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि अवाम की एहसास महरूमियों का खात्मा, सेहत, तालीम की सहूलियात फराहम करना सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। सिंध के गवर्नर कामरान खान टेसोरी से खानका ईदगाह शरीफ रावलपिंडी के पीर हसन हसीबुर रहमान ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में 21 जनवरी को होने वाली मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में पीर हसन नसीबुर्रहमान ने अवामी फलाह व बहबूद के लिए गवर्नर सिंध के मिसाली इक़दामात को सराहते हुए कहा कि IT के शोबे में गवर्नर सिंध के इक़दामात लायक तहसीन हैं। निगरां वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। बोर्ड ने हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के लेन देन की तकमील के सिलसिले में मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी। HBFC लिमिटेड और फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड की निजकारी के लिए ट्रांजैक्शन कमेटीज की भी मंजूरी दी गई। नाज़रीन, उर्दू ज़बान के मारूफ शायर बाकी सिद्दीकी को जहान फ़ानी से रुखसत हुए 52 बरस बीत गए हैं, लेकिन उनकी बेमिसाल शायरी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। इस्लामाबाद में उर्दू के नावर शायर बाकी सिद्दीकी की 52वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब हुई। मुकर्रीन ने कहा कि मोहम्मद अफजल कुरैशी अल मारूफ बाकी सिद्दीकी दरवेश सिफ्त इंसान थे और दीन और वतन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। बाकी सिद्दीकी ने शायरी के जरिए अवाम को मोहब्बत का पैगाम दिया। बाकी सिद्दीकी इतने बड़े शायर और इतने बड़े ड्रामा निगार और इतने बड़े अदीब थे कि उन्होंने अपने पूरे अहद को मुतासर किया। तख्लीक कार होना बहुत बड़ी फजीलत है। खुदा, माँ, धरती, ये सब बाकी भी लिखने, कहने, तख्लीक करने वाले जो भी हों, पेंटर हों, मौसीकार हों, तो बाकी सिद्दीकी का नाम भी उन्हीं खुश नसीबों में है जो तख्लीककार थे। शोरा कौम का कीमती असासा होते हैं जिनकी हम सबको कदर करनी चाहिए। बाकी सिद्दीकी की शराना खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। यही वजह है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा असासा है। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद सर्द मौसम की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क भर में शदीद धुंध और कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गलियात और गिरतोनवा में मौसम शदीद सर्द और ठंडी हवाओं का राज है। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। कोयटा, चमन, ज़ियारत और कलात में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क भर में सर्दी की लहर मजीद जारी रहेगी। सर्दी की शिद्दत से दर्जा हरारत में मजीद कमी आएगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो खुश्क सर्दी का राज है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह खुश्क सर्दी जो है ना ये बरकरार रहेगी और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों बाशमूल खिता पोटोहार में जो है ना धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि आज शाम रात और कल सुबह के रोज़ जो है बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में जो है हल्की बारिश और कुछ जगहों पे जो है ना वो बर्फ़बारी का इम्कान है। इसके अलावा जो बलाई इलाके होंगे पाकिस्तान के, इनमें जो है वो बादल आ सकते हैं और जो धुंध होगी वो धुंध का सिलसिला इसी तरह पॉकेट्स में जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का मजीद कहना था कि स्कर्दू -10, गिलगित -5, इस्तौर -4 और चित्राल का दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पंजाब के मैदानी इलाके इन दिनों धुंध और शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जिससे गंदम समेत दीगर फसलों को 10 से 40% के पैदावारी नुकसानात का खदशा है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। धुंध की वजह से आलमी सतह पर ज़री शोबे को सालाना 2 से 6 अरब डॉलर के नुकसानात बर्दाश्त करना पड़ते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के मैदानी इलाकों, खास तौर पर जनूबी पंजाब में इन दिनों गंदम की फसल तैयारी के अहम मरहले में होती है। सर्द रातों की नमी गंदम के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन हफ्ता भर धूप न निकलने और धुंध के केमियाई मादों की वजह से फसल की बढ़ोतरी
असरअंदाज हो रही है। कोहरे की वजह से पौधे डैमेज भी होते हैं, ऊपर से जल जाते हैं, तो इसका सद्देबाब ये है कि किसानों को चाहिए कि अब प्रॉपर तौर पे ज़मीन को सिराब करें, पानी दें, क्योंकि पानी जो कोहरे की शिद्दत है उसको कम करता है। इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। गंदम हमारी फसल है, उसका ऊपर वाले पत्ते जल जाते हैं तो उससे उसकी टिलरिंग बढ़ जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि जी जो पोह का कोहरा है वो रूढ़ी का बोरा। मौसम सरमा में कीनू, लीमू, अमरूद, आलू, प्याज, चने, स्ट्रॉबेरी, सौंफ, कैनोला, गन्ना, लीची, मटर और मसूर की फसल और पैदावार मुतासिर हो रहे हैं। सर्द मौसम में पड़ने वाला कोहरा गंदम और आलू के पत्तों के किनारों को काला कर देता है, जिससे बढ़ोतरी के अमल में कमी वाक़ई होती है। इस दौरान आम का बोर भी नहीं बढ़ सकता और इसकी पैदावार भी मुतासिर होती है। धुंध और शदीद सर्दी से ज़री शोबे को दरपेश मसाइल के तदारुक के लिए ज़रूरी है कि काश्तकार हजरात ज़री माहिरीन के मशवरों पर अमल करें। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीजुर रहमान मरी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सर्दी की शदीद लहर का सामना है। कोयटा डिवीजन, जोब, लोरालाई, कल्लात, रक्षा, नसीराबाद और मुकरान डिवीजन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल्लात, ज़ियारत, कान मेहतरज़ई, खानोज़ई, तोबा काकड़ी और तोबा चकज़ई समेत शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ज़ियारत में अब तक 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी कल्लात में -5 डिग्री, ज़ियारत में -4, कोयटा में -3 जबकि जोब में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा बारिश कोयटा और साहिली शहर पसनी में 10 जबकि खुजदार में 7 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। शुमाली बलूचिस्तान में आइंदा 24 घंटे भी मौसम सर्द रहने की तवक्को है। मगरिब की समझ से हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होने से 20 से ज्यादा अदला में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के है। बारखान में कम से कम टेम्परेचर 5 डिग्री, दालबंदी में 6, नौकंडी में 7 और पंजगुर में 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। रहमान मरी, PTV न्यूज़, कोयटा। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज से मरी और गिरदनवाह में बर्फबारी का इम्कान है। PDMA के तर्जुमान ने कहा कि बर्फबारी और बड़ी तादाद में सयाहों की मुतवक्के आमद के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए ज़िले इंतज़ामिया तनदही से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सयाहों के लिए 13 सहूलत मराकिज़ कायम किए गए हैं। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले लेह की बात करेंगे, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -9, काला -6, गिलगित और गोपिस में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 5, कराची 12, पेशावर 1 जबकि कोयटा में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। खेलों के मैदान से अच्छी खबर है। पाकिस्तानी खातून शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जकार्ता में होने वाली एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तलत ने चांदी का तमगा हासिल किया और पेरिस ओलंपिक्स में जगह बना ली। कशमाला तलत पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी पाकिस्तानी शूटर हैं। इससे कबल शूटर्स गुलफाम जोसेफ और GM बशीर भी ओलंपिक्स में जगह बना चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई है। न्यूजीलैंड जाने वालों में कप्तान शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल और वसीम जूनियर शामिल हैं। दीगर खिलाड़ी पहले ही पाकिस्तान से न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। PCB ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया। इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहे। आपका शुक्रिया।